We have our Bibles. हम सबों के पास में पवित्र शास्त्र बाइबल है। Amen. आमेन। Mobile phone is just a help, मोबाइल फोन से आप मदद लेते हैं, but carry your Bible always. लेकिन हर पल एक बाइबल, अपनी बाइबल साथ में रखें। Some of you have problem with your eyesight, कुछ लोगों का आंखों में तकलीफ है, so you need to enlarge the word so you can use your phone. तो आप शायद उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, इसलिए आप उसे मोबाइल इत्यादि चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। But don't be ashamed to carry this book. लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल को लेकर चलने में हम लजाएंगे नहीं। Many have died बहुतों ने translating this book. अपने जान को दिया है इस किताब का अनुवाद करते करते। Read it इसे पढ़ें every day. प्रतिरोज। We sing one song. हम एक गीत को गाते हैं, What a wonderful treasure. क्या ही खूबसूरत ये खजाना है। Gift of God without measure. परमेश्वर का भेंट है, असीमित है। We will carry, we will travel together. हम संग संग यात्रा करेंगे, My Bible मेरी बाइबल and I. और मैं। Hallelujah. हालेलुया। I remember first Bible I got. मुझे याद है जो सर्वप्रथम बाइबल जो मुझे पहली बाइबल मिली थी, It was a white Bible with a zip. और वो एक सफेद रंग की बाइबल थी, उसमें जिप लगा हुआ था। I treasured that Bible for many years. मैंने बहुत साल तक उसको संभाल कर रखा। Amen. आमेन। Parents, माता पिता, when your children want Bible, don't say no. जब आपके बच्चे बोलते हमको एक बाइबल खरीद के दो, तो उसे नहीं मत कहें। एक तो है ना घर में, ये कहकर कि एक तो पहले से है, शर्ट पैंट भी है और शर्ट पैंट भी, तो कपड़े भी है एक। there is going to be a stall outside after the service. इस सभा के बाद में बाहर में बाइबल सोसाइटी का एक स्टॉल लगेगा। Take opportunity, buy आप अवसर लेकर उसे खरीदें and give your best for this cause. और इस कार्य के लिए अपना सबसे बेहतरीन प्रभु को दें। Amen. आमेन। What a wonderful treasure, gift of God without measure. We will travel together, my Bible and I. Pick up your Bible right now. अपनी बाइबल उठाएं। What a wonderful treasure, gift of God without measure. We will travel together, my Bible and I. Sing it one more time. एक और बार गाएं, Lift it high. ऊंचा उठाएं। What a wonderful treasure, gift of God without measure. We will travel together, my Bible and I. If only those people who have died for this word of God would have been alive to see the book in your hand. काश वो लोग जिन्होंने इन बाइबलों को अनुवाद किया और छापा था सबसे शुरुआत में, यदि आज वो जिंदा होते और आप लोगों के हाथ की इन बाइबलों को देखते, They would rejoice. वो आनंदित हो जाते। This was burnt so many times. इस बाइबल को कितनी बार दुनिया के लोगों ने जलाया है, People got burnt. और इसको बचाते बचाते लोग भी जल गए। Today we have the word. लेकिन आज हम सबों के हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल कलाम है। Hallelujah. 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 Sing it one more time. एक और बार गाएं। What a wonderful treasure, gift of God without measure. We will travel together, my Bible and I. Give the Lord a good hand this morning. प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद Amen. दें आज सुबह। थैंक यू जीसस। Amen. आमेन। We had a special prayer on Friday. शुक्रवार को विशेष प्रार्थना सभा है। We prayed for those who have been
in big problem in the Mela over there, Kumbh Mela. शुक्रवार को जो प्रार्थना हुई उसमें हमने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो कि उस कुंभ मेले में मारे गए हादसे में, Desperate people. ऐसे हताश लोग, Everyone wanting to get rid of the sin of their life. हर जन अपने पाप से मुक्ति चाह रहा है, But in that, किंतु उस भाग दौड़ में or what they believed, जो वो विश्वास करते थे, many have lost their lives. उस प्रयास में बहुतों का जान चला गया। Every soul which dies goes eternally into eternity. हर प्राण जो इस दुनिया में मरता है वो अनंत काल में चला जाता है। And the scripture says God is not willing that any should perish. और पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का मन बताती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मरे, But all should come to the knowledge of the saving grace of our Lord Jesus Christ. परंतु ये चाहता है कि हर एक यीशु मसीह के उद्धार के अनुग्रह में आ जाए। The greatest problem in the world आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो है is not politics. वो राजनीति नहीं है। The greatest problem in the world is sin. आज दुनिया की सबसे मूल समस्या पाप है। In all his struggles in this life, man is always wanting to find a way out that इस we can जीवन get के- forgiven of his sins. संघर्ष के बीच में हर एक मनुष्य चाहता है कि वो किसी तरह से इनसे आजाद हो जाए, उसके पाप क्षमा हो जाए। Throughout the ages, there has been this struggle. युगों से ये संघर्ष लोगों में पाया गया है। Some have renounced the world. कुछ लोगों ने यहाँ तक कि दुनिया की चीजों को भी त्याग दिया, Separated themselves अपने आप को अलग कर लिया to seek for salvation. कि उनको किसी तरह से मोक्ष प्राप्त हो जाए। Some have gone on pilgrim journeys. कुछ घरों को छोड़कर निकल पड़े तीर्थ यात्राओं में। Some have sacrificed, some have given them all. कुछ लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया, कुछ ने अपना सब कुछ दान में दे दिया। And yet, तो भी they died in darkness. अंधकार से वे बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। The question comes to every man's heart, हर एक मनुष्य के हृदय में यह सवाल उठता है, then what is God's thought about this? फिर इन सब के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है? Yes, God has made a provision हाँ, परमेश्वर ने एक प्रावधान इसके लिए बनाया है that man can have salvation कि मनुष्य को उद्धार मिल जाए wherever he is. जहां कहीं भी वो है। Amen. आमीन। He doesn't have to go उसे जाने की जरूरत नहीं, for long journeys. लंबी यात्राओं में He doesn't have to struggle. उसे संघर्ष करने की जरूरत नहीं। Salvation is home delivery. उद्धार घर तक पहुंचाई जाती है, होम डिलीवरी है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Even a man in ICU can call on God. आईसीयू में पड़े आदमी के पास भी जो प्रभु को पुकारता है, His soul can be saved. वहां उसका उद्धार उसे मिल सकता है। A songwriter says, एक गीत का लेखक कहता है, what can wash away my sin? मेरे पाप को कौन सी चीज धो सकती है? Nothing but the blood of Jesus. यीशु के लहू को छोड़ और कुछ भी नहीं धो सकता है। Amen. Hallelujah. What can make me whole again? कौन सी चीज मुझको फिर से भला चंगा कर सकती है? Nothing but the blood of Jesus. यीशु के लहू को छोड़ और कुछ भी नहीं। Oh, precious is the flow. वो क्या ही बहुमूल्य वो बहाव है। Amen. That makes me white as snow. जो मुझे हिम के नाई श्वेत कर देती है। What can wash away my sin? कौन सी चीज मेरे पाप को धो सकती है? Nothing but the blood of Jesus. और कुछ नहीं, केवल यीशु मसीह का लहू। In the book of Zechariah, the 13th chapter, जकरिया नबी की किताब और उसका 13 अध्याय में the first verse. पहली 2 आयतें।
We read verse 1. हम उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। The prophet is prophesying जकरिया भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है of the fountain that is going to be opened. एक ऐसा सोता फूटेगा From the house of David दाऊद के घराने से to all the inhabitants of Jerusalem और यरूशलेम के निवासियों के लिए for sin, पाप के लिए for uncleanness. और मलिनता धोने के लिए। Amen. आमेन। This is what the people have been seeking for. यही चीज है जो आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। This sin cannot be washed with water. और ये पाप एक ऐसी चीज है जिसे पानी से, जल से आप धो नहीं सकते। The first mention of sin पाप का सर्वप्रथम उल्लेख जो बाइबल में हुआ है is God when he's speaking to Cain, he said to him, वो उस समय हुआ जब परमेश्वर कैन से बात कर रहा था। if you do well, कहा यदि तू भला करेगा will you not be accepted? तो क्या तेरा दान स्वीकार नहीं किया जाएगा। The Genesis 4th chapter 7th verse. 4:7 में लिखा है, If thou doest not well, और यदि तू भला ना करे sin lies at your door, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है and unto thee shall be the desire, and thou shalt rule over him. और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। You and I know that when Adam and Eve disobeyed God, मैं और आप जानते जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, their relationship with God was broken. उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। That's what the devil wants. शैतान यही चाहता है। From then on, there has been a constant struggle of man. और उस समय से मनुष्य के अंदर एक निरंतर संघर्ष रहा है। Even in the belief in God, still he struggles. यदि वो प्रभु पर विश्वास करता है फिर भी संघर्ष से गुजरता है। Cain is a type of a religious person. कैन एक धार्मिक व्यक्ति का एक प्रतिबिंब है। Both are sacrificing. Abel is also sacrificing. Cain is also sacrificing. दोनों बलिदान चढ़ा रहे, हाबेल भी चढ़ा रहा और कैन भी चढ़ा रहा। But Cain is bringing something out of his own labor. लेकिन कैन कुछ अपने हाथों के परिश्रम के फल को लेकर आया है। And in that process of time, और उस समय की प्रक्रिया के दौरान it says his ground, he was a tiller of ground. वो कहता है कि वो जमीन का खोदने वाला, हल चलाने वाला था। And he brought forth the fruit out of the ground unto the Lord. और उसने यहोवा के लिए उस जमीन से, भूमि से निकली हुई उपज में से भेंट लेकर आया। Today also man thinks he can attain salvation by doing good works. आज भी मनुष्य सोचता है कि वो अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर लेगा। Every few days somebody new is coming out with a new philosophy. हर एक नए दिन में कोई व्यक्ति एक नया तत्व ज्ञान को लेकर आता है। And they are swaying the crowd behind them. और भीड़ की भीड़ उनकी सुनने जाती है। He goes, somebody else comes in. वो चला जाता, कोई और एक नया ज्ञान को लेके आता। It's a new philosophy. वो एक नया किस्म का दर्शन शास्त्र। In everything there is a lot of instructions. और हर शास्त्रों में
बहुत ढेर सारे निर्देश दिए हैं, Every lecture there is lot of instructions. और हर एक प्रकार के निर्देशों में वो केवल बातों को, निर्देशों को, आदेशों को देते They are हैं। instructing them how to receive salvation. लोगों को बताते हैं मोक्ष कैसे, उद्धार कैसे प्राप्त करना है। Do this, do this, do this. ये कर्म, ये काम, ये सब करो, Don't do this, don't do that. ये नहीं करना, ये नहीं करना। And man hears that instructions, मनुष्य उन निर्देशों को सुनता है and some of them are deceived, और उनमें से कुछ भ्रमित हो जाते हैं, and none of them receive salvation. और उनमें से किसी को उद्धार नहीं मिलता। Cain is also offering something which he thought was right. कैन भी कुछ ऐसी चीज भेंट चढ़ा रहा था जिसे उसे लगा कि वो सही है, And the scripture says, और पवित्र शास्त्र बोलती he है brought it unto the Lord. वो उसे प्रभु के सामने लेकर आया। Meaning, अर्थात he believed in God. वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, But the way of getting redeemed from sin was his own works. लेकिन पापों से छुटकारा अपने ही कर्मों के द्वारा सोचकर। He's watching his brother, वो अपने भाई को भी देख रहा है, हाबिल को, and he's seeing that his sacrifice goes up. और वो देखता है कि उसका बलिदान परमेश्वर ऊपर उठा लिया, Because Abel brought from the flock he had. क्योंकि हाबिल भेड़ बकरियों के उनमें से भेंट चढ़ाया। And the scripture says, without shedding of blood, there can be no redemption. और बाइबल कहती लहू के बहाए बिना वहां पर छुटकारा नहीं। It was nothing that he could do. कोई भी चीज ऐसी नहीं जो वो कर सकता था। All that he could give to God was something God has given to him. एकमात्र जो प्रभु को दे सकता था वो जो उसके पास थी, उन्हीं भेड़ बकरी मेमने में से। He's giving animal's life. वो एक जानवर की जिंदगी प्रभु को दे रहा था। In one way, he was telling God, एक रीति से परमेश्वर से कह रहा था, this is a sacrifice for my sins. ये मेरे पापों के लिए एक बलिदान स्वरूप है। And Bible says God accepted that sacrifice. बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके भेंट को तो स्वीकार किया, But Cain's sacrifice God did not have any respect to. लेकिन कैन के भेंट को परमेश्वर ने कोई आदर नहीं दिया। He also sacrificed उसने भी बलिदान भेंट चढ़ाई, to the Lord. प्रभु को चढ़ाई। So many people do certain things to please God by their works. बहुत से लोग आज परमेश्वर को अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न करना देखते हैं। Some can think that if they give lot of offering that God will be pleased. कुछ को लगता है यदि मैं बढ़ चढ़ कर दान दूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। Some think that church attendance will save them. कुछ को लगता है चर्च में निरंतर आऊंगा तो मुझे उद्धार मिलेगा। Some think that they read the Bible more than others that can save them. कुछ को लगता है मैं दी बाइबल दूसरों से अधिक पढ़ूं तो परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेगा। Don't depend on works. अपने किए गए कर्मों पे भरोसा ना करें। By works of man, no man will be justified. मनुष्य के कर्मों से किसी का उद्धार नहीं हुआ है। Amen. Amen. God is demanding you, परमेश्वर चाहता है आपको और मुझको, not your works. आपके काम, हाथ के काम नहीं। Amen. Amen. God wants that person's heart. परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय को चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We need to somehow let this word go through. हमें चाहिए कि वचन दूर दूर तक उन लोगों तक पहुंच जाए, Because devil is trying to choke the word of God. क्योंकि शैतान चाह रहा है कि परमेश्वर का ये जीवित वचन लोगों तक ना पहुंच पाए। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा you shall know the truth तुम सत्य को जान लोगे and the truth will set you free. और वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So it's like people giving instructions. ये ऐसा है जैसे लोग निर्देश दे रहे हैं। I tell one story like this. मैं इस प्रकार से घटना को, कहानी को कहता हूं There is one lake and one person is drowning. कि एक तालाब है और उस तालाब के बीचों बीच एक आदमी अचानक डूबने लगा। And what a drowning man will say, और एक डूबने वाला आदमी क्या चिल्लाएगा? help me. बचाओ मुझे, कोई बचाओ। That's what the world is crying out. आज दुनिया के हृदय की पुकार वही है, Somebody help. बचाओ मुझे, कोई बचाओ। We sing one song. हम एक गीत गाते हैं, I was sinking deep in sin, मैं पाप की गहराई में डूब रहा था, far from the peaceful shore, उस शांत किनारे से कितना दूर था, very deeply stained within, बहुत गहराई से मेरे अंदर धब्बे थे, sinking to rise no more. ऐसा डूब रहा था फिर कभी उठने का नहीं।
But the master of the sea heard my despairing cry. लेकिन उस समुद्र के सृष्टिकर्ता ने मेरी आवाज सुन ली, From the waters lifted me. उस डूबने वाले पानी से मुझको निकाल दिया, Now safe am I. और अब मैं सुरक्षित हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And the chorus says, और उस गीत का कोरस कहता है, Love lifted me प्रेम ने मुझे उठा दिया, when nothing else could help. जब और कोई चीज काम नहीं आई, Love lifted me. तब प्रेम ने बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this man is drowning ये आदमी डूब रहा है and he's shouting, Help me. और वो चिल्ला रहा है, कोई बचाओ। Many people are around. बहुत से लोग उस तालाब के किनारे इकट्ठा हो Some गए, are good swimmers कुछ अच्छे तैराक भी and हैं, they're giving him instructions. और वो वहां खड़े होकर उसको कहते हैं, Put your hand properly. अपने हाथ को ठीक से चलाओ। One person, other person says, दूसरा व्यक्ति कहता है Keep good balance. कि डूबो नहीं, ऊपर संतुलन बनाए रखो। Third fellow says, तीसरा कहता है Don't be afraid. डरो मत, Strike your legs. पांव चलाना बंद मत करो। Fourth person says, चौथा व्यक्ति कहता है Some instructions about how to swim. तैराकी के कुछ गुरु उसको बताता है कि कैसे बच जाएगा। The instructions were quite good. वो सारे निर्देश अच्छे थे, But a sinking man doesn't need instruction. लेकिन एक डूबने वाले व्यक्ति को उस समय निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, He needs a savior. उसे एक बचाने वाला चाहिए। Amen. Amen. One man jumps, एक आदमी अचानक तालाब में कूद पड़ता है brings him out. और उस व्यक्ति को पकड़ के खींच के बाहर ले A आता है। religion is always saying, do this, do this, do this. धर्म हमेशा मनुष्य को ये करो, ये करो, ये करो कहता आया है, No religion can save any man's soul. लेकिन कोई भी धर्म मनुष्य के आत्मा को बचाने का सामर्थ्य नहीं रखता। Only Jesus can save your soul. सामर्थ्य केवल यीशु के पास में है। Hallelujah. Hallelujah. He is the one who died. वही है जो कि मारा गया, जो कूद पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। Pull that man out of sin. उस आदमी को पाप के उस डूबते तालाब से निकाल लिया। David writing says, दाऊद लिखते बोलता है, He brought me out of the miry clay. उसने मुझे कीच में से बाहर निकाला। Hallelujah. 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 Amen. Set my feet मेरे पांव को on the दृढ़ rock. किया है, On the rock to stay. स्थिर चट्टान के ऊपर। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। As long as the law never came, जब तक व्यवस्था वहां पर लोगों के बीच नहीं आई थी, man had an excuse. मनुष्य के पास बचने का एक तरीका था। But when the law came, it was very clear what man should do and what he should not. लेकिन जब व्यवस्था आई, ये बात स्पष्ट हो गया कि उसे क्या करना है मनुष्य को और क्या नहीं करना है। A very devout Jew will try to keep the law to the very letter. और एक बहुत भक्त यहूदी मनुष्य व्यवस्था को उसके सारे अक्षर में पालन करना चाहता है। He would be blind to the things of God. वो परमेश्वर की चीजों के लिए जैसे कि अंधा हो जाता है, And he thinks that this law is above everything. और उसको लगता है कि उसके व्यवस्था सब चीज से ऊपर है। So Paul, when he is writing, he tells the Jews, इसलिए पौलुस जब लिख रहा था यहूदियों से कहता है, he says, after 400 years the law came. 400 साल बीतने के बाद गुलामी के व्यवस्था उन्हें मिली। Before that, Abraham was justified by faith. और उसके पूर्व अब्राहम के समय में लोग धर्मी ठहराए गए अपने विश्वास के द्वारा। Amen. आमेन। We are justified by faith. विश्वास से हमारा उद्धार होता है। Galatians 2nd chapter, गलातियों उसके दूसरा अध्याय में 16th verse says, और उसकी 16 आयत कहती है, knowing that a man is not justified by the works of the law, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, but by faith in Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ and not by the works of the law, for by works of the law shall no flesh be justified. पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। Yes, read it. हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। Amen. आमेन। Now let's make it very simple. इस बात को हम और सरलता से समझ लें। Then what should we do? फिर हमें क्या करना चाहिए?
You know, when Peter preached on that day of Pentecost, जब पतरस पेंतिकुस्त के दिन में खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए, men's heart was, they were convicted. सुनने वालों के हृदय वो कट गए, कायल हो गए, And they began to say, sirs, what should we do? और वो पूछने लगे, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? Meaning, man is wanting to receive salvation. अर्थात मनुष्य उद्धार पाना चाहता है। These men are saying, ये मनुष्य कह रहे, what shall we do to receive salvation? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए बताओ हम क्या करें? All this crowd which is running here and there, ये तमाम जो भीड़ आज दुनिया में यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, they are some of them, most of them are seeking for salvation. उनमें से बहुत से लोग, अधिकतर लोग उद्धार या मोक्ष पाना चाहते हैं, And they think that once they do certain things, they will receive. और उनको ऐसा लगता है कि यदि वो किसी प्रकार का कोई काम करेंगे तो उनको ये मुक्ति मिल जाएगी। Thousands of instructions are there. हजारों निर्देश है पालन करने। They do not know which one to follow. उनको ये भी नहीं समझता कि इनमें से कौन सा जरूरी है। Thousands of gods are there. हजारों ईश्वर दुनिया में पाए जाते They हैं। do not know which one to follow. उनको ये नहीं समझता कि किसके पीछे चलना है। Yet they want salvation. तो भी उनको अपने प्राण के लिए उद्धार चाहिए। These were devout Jews who are calling and saying, ये लोग तो भक्त यहूदी लोग थे जो पूछ रहे थे, men, brethren, what shall we do हे भाइयों सज्जनों, हम क्या करें to receive salvation? उद्धार पाने के लिए? Peter made it very, very plain. पतरस ने उन भीड़ को बिल्कुल साफ उत्तर दिया, Repent, सुनो, पश्चाताप करो, meaning turn away from your sin. अर्थात अपने अपने पापों Have forgiveness of sins. और तुम्हें तुम्हारे पापों की क्षमा मिल जाएगी, You shall receive the baptism of the Holy Ghost. और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Amen. Amen. Everything is free. हर एक चीज परमेश्वर की तरफ से मुफ्त है। Hallelujah. Hallelujah. You don't have to do anything. तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। They asked Jesus, उन्होंने यीशु से पूछा, which is the biggest work we have to do? कौन सा काम सबसे बड़ा काम है जो हम करें? They thought he will tell them so certain things you must do. उनको लगा यीशु मसीह को एक बड़ा काम बताएगा जो हम कर सकते Or हैं, go for a pilgrimage. जैसे कि कोई लंबी तीर्थ यात्रा बताएगा, Or give a big offering. या कोई बहुत बड़ा दान देने कहेगा। David says, दाऊद कहता, offerings I can give many. भेंट मैं तुझे कितना दे सकता, You are not pleased with those. लेकिन तू उन भेंटों से प्रसन्न नहीं होता। I know one thing. मुझे एक बात तेरे बारे में मालूम है, Broken and a contrite heart, oh God, you will not एक despise. टूटा हुआ दिल, एक पिसा हुआ मन, प्रभु तू कभी तुच्छ नहीं जानता है। Hallelujah. Amen. Sacrifices of God परमेश्वर जिन बलिदानों से प्रसन्न होता is the है, broken spirit. वो एक टूटा हुआ मन है। And they were asking Jesus, और वे लोग यीशु के पास आके पूछे, what good work shall we do? हे प्रभु बता कौन सा हम बड़ा और अच्छा काम करें? You know what Jesus said? आप जानती यीशु का उत्तर, The greatest work you can ever do जो सबसे महान काम जो कोई कर सकता है इस दुनिया में, is to believe on the word of God. वो काम है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। Amen. Amen. This word will give you life. ये वचन है जो तुझको जिंदगी, अनंत जिंदगी देगा। This word will give you healing. यही वचन है जो तुझको शरीर में चंगाई By this देगा। word the world was created. यही वचन है जिसके द्वारा ये पृथ्वी जो देख रहा बनी है। In the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with वचन God, परमेश्वर के साथ and था, the word was वचन God, परमेश्वर था, and the word became flesh. और वो वचन शरीर बन गया। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. For you, तेरे लिए, for your salvation, तुम्हारे उद्धार के लिए, what you would have suffered, जो दुख तुझको उठाना था, he suffered. यीशु ने पूरा वो ले लिया। When he should have died, जहाँ तुझको मरना था, he died. वो उसकी जगह मर गया। Amen. Amen. He took all our sins upon his उसने body. हमारे सारे पापों को बटोर कर अपने ऊपर ले लिया। That was God's provision for man. ये मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का योजना था। God doesn't want man to struggle here and there. परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य यहाँ वहाँ भटके उस उद्धार के लिए। Wherever you are, जहाँ तू रहता है, call on the name of the Lord. वहीं से पुकार प्रभु यीशु के नाम को, He will hear your voice. वो तेरी आवाज स्वर्ग से सुन लेगा। Hallelujah. हालेलुया। You might be in a hut. चाहे हो सकता तू झोपड़ी से सुन रहा, You might be in the field. चाहे तू खेत में सुन रहा, You may be in the ICU. चाहे तू आईसीयू में सुन रहा, You might be in your kitchen. अपने किचन में सुन रहा, You might be in your तू bedroom. अपने बिछौने में इस आवाज को सुन रहा। Call on the name of the Lord, वहीं Jesus से Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार। Hallelujah. हालेलुया। There you will be saved. और वहीं पर तेरा उद्धार तुझे मिल जाएगा। Amen. आमीन।
You are saying not in the church? आप कहेंगे क्या चर्च में जाके नहीं मिलता? No. नहीं, वही जगह नहीं You can है। have it here also. तू यहाँ पर भी पा सकता है, But wherever you are, लेकिन जहाँ कहीं तू रहता हो, maybe stuck in some road in some corner. वो किसी रोड में, किसी भीड़ भाड़ में तू फंस गया हो, वहां पर भी यदि तू पुकारे, You're crying for help. तू मदद के लिए आवाज से पुकार रहा हो, There is no connection in your phone. तेरे फोन में भी कनेक्शन नहीं मिल You रहा, don't need any connection to man. वो तुझे के मनुष्य की सहायता नहीं चाहिए, Your help will come from तेरी God. सहायता तेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। Call on the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम को पुकार, and God will hear you. और परमेश्वर तेरी सुन लेगा। Salvation is at your doorstep. उद्धार तेरे घर के डेवड़ी में खड़ा है, Salvation is home delivery. उद्धार घर तक पहुंचाया जाता है। Glory to प्रभु God. की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Those days men were seeking him. उन दिनों में से लोग उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे। Andrew was one. उनमें से एक अंद्रियास नाम का जवान, He was with John the Baptist. वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। And one day एक दिन क्या हुआ that we read in John's Gospel, जो हम यूहन्ना के सुसमाचार में उस घटना को पाते हैं, first chapter, उसके पहले अध्याय में 29th verses. और उसके 29 आयत में लिखा है, Next day John seeth Jesus coming, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, and he pointed to Jesus and said, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की तरफ इशारा करके बोलता है, Behold the Lamb of God देखो ये परमेश्वर का मेमना है who takes away the sin of the world. जो जगत के पाप उठा ले जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This sin what he's talking, ये पाप जिसकी वो बात कर रहा है, जगत का पाप, the sin which takes us to hell. जो जगत का पाप हमें नरक ले जाता है, वो पाप। God forgives our sins, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, but this sin परंतु ये जो पाप है which man is struggling to come out of, जिसमें से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य संघर्ष कर this रहा sin that has broken our relationship with God, है, ये पाप जिसने हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ तोड़ दिया, that has to be restored. उस रिश्ते को फिर से कायम करना जरूरी है। And suddenly और एकाएक Jesus walks on the scene. यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया। We sing one song. हम एक गीत गाते हैं, He came to me वो मेरे पास आया when I couldn't come to where he was. जब मुझ में ये सामर्थ नहीं थी कि मैं वहां तक जाऊं जहां वो परमेश्वर था। He came to me. वो परमेश्वर चल कर मेरे पास आ गया। That is salvation. यही उद्धार है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Behold the Lamb. परमेश्वर के मेमने को देख। Immediately struck on his mind. तुरंत उसके मन में ये बात आई, A sacrifice of God. परमेश्वर का एक बलिदान का मेमना That will take away the sin of man. जो जगत का पाप ले जाने के लिए आया है। Hallelujah. हालेलुया। You shall call his name Jesus. तुम उसका नाम यीशु कहोगे। He shall save his people from their sins. और वो अपने लोगों को उनके पापों से स्वतंत्र करेगा, बचाए। If only these people knew काश दुनिया के लोग इस एक सच्चाई को जान लेते he will save कि वह बचाएगा you तुझे from your sins. तेरे पापों से बचा लेगा। Amen. आमीन। You shall call his name Jesus. लोग उसका नाम यीशु कहकर पुकारेंगे, Savior. उद्धार करता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He shall save them from their sins. और वो उनको उनके पापों से आजाद करेगा। We need to pray. हमें
बहुत प्रार्थना करनी है that people will forget religion कि लोग किसी भी धर्म की बातों से धर्म को भूलें and seek the true and the living God. और वो जो इस दुनिया का जो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसकी खोज में लग जाएं। Amen. आमेन। If you have never called on God and prayed this prayer anytime in your life, do it today. यदि सुनने वाले कोई भी जन ऐसा है जिसने अपने जीवन में आज तक यीशु मसीह को पुकारा नहीं है अपने उद्धार के लिए, तो आज उसे करें। Amen. आमेन। So simple salvation you will not find anywhere. उद्धार जो इतनी आसानी से मिलता, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। With this salvation there is a lot of blessings. इस उद्धार के साथ बहुत सी आशीषें भी हैं। Lamb of God. परमेश्वर, देखो परमेश्वर का मेमना। Amen. आमेन। The lamb had to die. मेमने को मरना ही था। Jesus didn't come here to live and reign. यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया था कि वो जिए और राज्य करे, नहीं। He came to give his life a sacrifice for sins of man. वो आया ही इसलिए था कि मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान दे। God so loved the world क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया He gave his son. कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, Anyone who believes, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे, any religion, caste, creed, tribe, whatever, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी देश राष्ट्र का लोग हो, shall be saved. वो व्यक्ति उद्धार पालेगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। There is salvation is in this name. उसके नाम में ही उद्धार है। Amen. आमेन। This name was given by God himself. ये नाम स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। Acts 4th chapter 12th verse we all know. प्रेरित 4 अध्याय में उसकी 12 को हम जानते हैं। There's salvation in no other name. लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। He's trying to make it clear वो बहुत ही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है there will be many names, कि बहुत से दूसरे दूसरे नाम भी आगे आएंगे, but the name which can give salvation परंतु जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है is only the name of Jesus. वो नाम केवल यीशु का नाम है। Amen. हालेलुया। So many names can be named. बहुत से नाम हो सकते हैं दुनिया में, And we can shout that name for whole of our life. और जिंदगी भर उस नाम को पुकार सकते हैं उद्धार पाने के लिए। But there is no salvation in that name. लेकिन बाइबल स्पष्ट करती कोई दूसरे नाम में उद्धार नहीं है। Amen. आमेन। Only the name of Jesus. केवल एक यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know, Paul and Silas were put in the prison आप जानते पौलुस और सिलास को कैद खाने में डाल दिया गया था, because they were preaching in the name of Jesus Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे थे। They were so irritated about the name of Christ. यीशु मसीह का नाम सुनते ही वो चिढ़ गए। And the religious Jews brought them, put them in. धार्मिक यहूदी लोगों ने उनको पकड़ा और कैद खाने में डाल दिया। And at night they began to praise God. रात को पौलुस और सिलास परमेश्वर के लिए भजन गाने लगे। An earthquake and they were delivered. एक बड़ा भूडोल हुआ और वे लोग छुटकारा पा गए। And the man saw that the jail doors are open. जब उस The jailer, जेलर ने देखा
कि पूरा कैद के द्वार फाटक खुले पड़े he हैं, thought of committing suicide. उसने अपने आप की हत्या करने की सोची। Paul cried with a loud voice and said, लेकिन पौल उसने जोर से चिल्लाकर उसको रोक कर कहा, "Man, don't do any harm to yourselves. हे मनुष्य, अपने आप की हानि मत कर, We are all here." हम सारे के सारे कैदी यही हैं। He came, fear and trembling fell down. वो तेजी से डरते और कांपते हुए वहां पर लपका And he said to them, और पौलुस से कहता है, "Sirs, हे सज्जनों, what must I do to be saved?" उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Paul did not give him a big lecture. पौलुस ने उसको एक लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। He did not say, "First ask for forgiveness from us. उसने ये भी नहीं कहा कि सबसे पहले तुम हम लोगों से माफी मांगो, You have hit us without cause." तुमने बिना कारण से हमको कल मारा था, Or come and kneel down before us first, या फिर पहले आओ यहाँ घुटने टेको, and we will lay hands on you. फिर हम तुम्हारे ऊपर हाथ रख के दुआ करेंगे। Now this has become very famous now. आजकल बड़ा ही ऐसा लोकप्रिय हो गया है। Jesus is out, people are in. यीशु मसीह बाहर है, लोग अंदर है। Like one, anyway, Paul said, पौलुस कहता है, "You believe on the name of the Lord Jesus Christ, तुम प्रभु यीशु मसीह पर उसके नाम पर भरोसा कर, you will be saved, तो तू बच जाएगा, and your household will be saved." तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। Amen. What? कैसे? Believe on the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर Your sins will be forgiven. और तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. And that night, और उसी रात salvation came to the house. उसके घराने में बड़ा उद्धार आया। He did not have to go somewhere to get salvation. वो उसको उद्धार पाने के लिए जेल से बाहर कहीं जाना नहीं पड़ा। Amen. आमीन। Salvation will come to your house. उद्धार तेरे घर पहुंचता है। I told you it is home delivery. मैंने पहले ही कहा, Amen. ये तो होम डिलीवरी है। Hallelujah. Hallelujah. Come to your house, don't go anywhere. कहीं और नहीं, तेरे घर में ही यीशु तुझको बचाएगा। Hallelujah. आमीन। Amen. ग्लोरी, आमीन। That night, उसी रात की he इस घड़ी में washed their wounds. उसने पौलुस और सिलास के उन घावों को पोंछा। This same fellow hit him is washing. वही हवलदार जिसने उसको मारा था कुछ समय पहले, At night, रात्रि के घड़ी में kitchen is awake. वो वहां पर किचन में भी कुछ बनने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Fellowship without khana pina is no fellowship. वो बिना खाना पीना के कोई संगति नहीं है। Amen. आमीन। Nice things are coming. अच्छी अच्छी चीजें वो बनाकर उनके लिए लाने लगे Whole household is there. और पूरा उस जेलर का घराना वहीं पर बैठा था। Same night they were all baptized. और उसी रात को उन्होंने Hallelujah. पानी का बपतिस्मा भी ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. This is, I think, only one part of the story. मुझको तो लगता है ये कहानी का केवल एक ही भाग है। What about all those Kadis? दूसरे कैदियों के बारे में क्या था? I think there was a line of them for the baptism. ओ मुझको लगता है कि Amen. वहाँ बपतिस्मा लेने वालों की लाइन लगी होगी। They did not run away. वे लोग में से कोई भी Every भागा time नहीं। they thought how to run, but now they are not running. हर एक कैदी सपना देखता है जेल से भागने का, लेकिन खुला हुआ फाटक में भी नहीं भागा। When God comes in, there is absolute peace. जब परमेश्वर Amen. जहाँ पर आ जाए Amen. वहाँ संपूर्ण शांति है। Hallelujah. There is no Hallelujah. confusion, no pushing. वहाँ पर कोई धक्का मुक्की नहीं है, God is there. क्योंकि परमेश्वर स्वयं है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Believe on the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर। Yes, friend. हाँ मेरे दोस्त, Don't have to do anything else. तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। Just believe that Jesus Christ is Lord. केवल इस बात को विश्वास कर कि यीशु मसीह ही तेरा प्रभु है। He died for your sins and rose again the third day. तेरे पापों के लिए उसी ने अपनी जान दी है और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ है। You will be saved wherever you are. तू जहां कहीं भी सुनता है वहीं पर तू उद्धार पालेगा। Hallelujah. हालेलुया। So simple. इतना आसान है। That is love of God. ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। The Bible says, बाइबल कहती है while we were yet in sins, जब हम पापों में ही थे, Christ died. मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया।
For all those who are going for to their sins to be washed, हर एक जो अपने पापों से आजाद होने धुलने के लिए जाते हैं, come to this fountain वो इस बहते हुए सोते के पास आए, which flows from the wounds of Jesus Christ. ये सोता यीशु मसीह के घावों से बह रहा है, His own blood उसका खुद का लहू की धारा है that can wash you from all your sins. जो तुझको तेरे सारे पापों से साफ कर देगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, forgiveness क्षमा is God's priority. ये परमेश्वर का योजना है। First thing in the gospel is forgiveness. सुसमाचार की सर्वप्रथम चीज क्षमा है। The gospel itself means forgiveness. सुसमाचार का अर्थ ही वहां पर क्षमा है। Acts 5th chapter 31st verse says, प्रेरित 5 और उसके 31 आयत में लिखा है, God has exalted Jesus with his right hand to be prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। Amen. आमेन। God is ever willing. He has the plan to forgive. परमेश्वर हमेशा तैयार है और उसके पास क्षमा करने की योजना है। The gospel of forgiveness. क्षमा का सुसमाचार है ये। Then what I have to do, you will say? फिर आप मन में सवाल करते हैं, तो यहां पर मुझको क्या करना है? Just believe. उद्धार पाने के लिए तुझको केवल यीशु पर विश्वास करना है। What Jesus did for you. यीशु मसीह ने तेरे लिए जो किया है। Wherever you are, you can be saved. तो जहां कहीं भी हो उस जगह में उद्धार पा सकता है। Amen. आमेन। You might be in hospital, आप में से कोई अस्पताल में होगा, unable to speak maybe, शायद आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, but you can hear. लेकिन आपको आवाज सुनाई देती है। From that place you can call by your spirit. उसी स्थान से अपनी आत्मा के अंदर से तू उस परमेश्वर को पुकार। Say to him, Lord, please save my soul. उससे कह, प्रभु मेरी आत्मा को बचा ले। God will save you. परमेश्वर तुझको मोक्ष दे देगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You can be a crippled person, unable to walk. हो सकता है आप पांव से दुर्बल हैं, आप चल फिर नहीं सकते हैं, You're old and nobody take you to the house of God. और आप बूढ़े हैं, चल नहीं पाते, कोई आपको प्रभु के घर नहीं लाता। Wherever you are, तू जहां पर से भी तू सुन रहा हो, God is there. सुन, परमेश्वर वही है। Amen. आमेन। He's just one prayer away. उसकी दूरी केवल एक प्रार्थना की है। Whisper a prayer. एक प्रार्थना अपने दिल से कर। Hallelujah. जीसस। One song says, एक गीत कहता है, give the wind a mighty voice. हवा को एक बलवंत आवाज दे दो। Jesus saves, Jesus saves. यीशु बचाता है, यीशु बचाता है। Tell to sinners far and wide, पापियों को जो दूर और दूरस्थ स्थानों में उनसे कहो, Jesus saves, यीशु बचाता है, Jesus saves. यीशु उद्धार देता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। We need to tell people हमें लोगों से कहने की जरूरत है about this great salvation. इस बड़े उद्धार के बारे में। Ephesians 1st chapter 7th verse says, इफिसियोस का पहला अध्याय, in whom we have redemption through the blood, through his blood, the forgiveness of sins according to his riches of his grace. First chapter, 7th verse. 7वीं आयत में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Amen. आमेन, हालेलुया। We have got the redemption through his blood. हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है।
forgiveness of sins अर्थात अपराधों की क्षमा according to his riches of his grace. उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। What an exchange. क्या परमेश्वर ने हमारे साथ बदला किया है। He who knew no sin वो परमेश्वर जो पाप से अनजान था became sin for us, हमारे लिए पाप ठहर गया, that we might become righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Try to understand. इस बात को समझने का प्रयास करें। One man's sin can make the whole world sinners. एक आदमी का पाप यदि पूरे जगत को पापी कर सकता है, That also man, वो भी एक आदमी का पाप, how much more फिर कितना बढ़कर ये बात the है, righteousness of the Son of God परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता can make everybody righteous. हर एक जगत के लोगों को धर्मी बना सकती है। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। One man's sin, एक शारीरिक मनुष्य ने पाप किया whole world is under sin. और पूरा जगत पाप के अधीन हो गया, The other one, लेकिन दूसरा the living spirit, जो जीवित आत्मा है, he gave himself for sin, वो अपने आप को पाप के लिए अपनी जान दे दी that everyone can become righteous. ताकि सारे के सारे धर्मी बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? Believe. विश्वास से It केवल, is free. वो मुफ्त है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Regardless of caste, creed, religion, और ये उद्धार में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, you are most important. आप व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। Amen. आमेन। The blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का रक्त, Hallelujah. जीसस, Hallelujah. ओ हालेलुया, Cleanses from all sin. हर एक अपराधों से हमें साफ कर देता है। 1 John, 1st chapter, 7th verse. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वीं आयत। If we walk in the light as He's in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कितने पापों से? आमेन. आमेन, थैंक यू जीसस, Hallelujah. हालेलुया। We got a clean chit. हमारे को क्लीन चिट मिल जाती है परमेश्वर की ओर से, From the most highest court in the world. वो भी दुनिया के सबसे अति उच्चतम न्यायालय से। I find no fault in you. और वो न्यायी कहता है, Hallelujah. मैं तुझ में कोई दोष नहीं पाता। Hallelujah. हालेलुया। Because the righteousness of Christ covers us. क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता हमें ढक लेती है। Blood of Jesus यीशु का लहू cleanseth from all sin. हमें हर एक पापों से शुद्ध। There are so many things to share. कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। The blood of bulls and goats could never take away the sin. जब बैलों के और जानवरों का लहू मनुष्य के पाप को दूर नहीं कर सका, The blood of Jesus. तब यीशु मसीह का खून, Hallelujah. Hallelujah. It doesn't cover. वो हमें हमारे पाप को छिपाता नहीं है, Washes. परंतु पाप को धो के साफ कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, David in his life committed a very big sin. आप जानते हैं दाऊद अपने जीवन में उसने एक बड़ा अपराध किया था, And when he sinned, that sin, the joy of salvation went away from him. और उस पाप के कारण उसका उद्धार का आनंद जैसे उससे अलग हो गया। His relationship with God was broken. उसका रिश्ता अपने ही परमेश्वर के साथ में टूट For गया। a little bit of pleasure, of bodily pleasure, उस शारीरिक कुछ पल के उस आनंद को सोचकर he had lost the presence of God. उसने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था। And when the prophet came and told him, और जब भविष्यद्वक्ता ने आकर उससे कहा, "You are the man, David." दाऊद वो मनुष्य जिसने पाप किया वो तू है। You know, in those days, king could kill prophets, आप जानते उन दिनों में राजा लोग भी नबियों को कत्ल करवा देते थे silence them, और उनको शांत कर देते थे, but not with David. लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। He fell on his face दाऊद मुंह के बल गिरा and prayed this prayer which we read in Psalm 51. और इस प्रार्थना को करता है जो हम भजन संहिता
51 में पढ़ते हैं, Have mercy upon me, O God, हे परमेश्वर मुझ पर तरस खा, according to thy loving kindness. अपनी करुणा से, According to the multitude of the tender mercies, blot out my transgression. अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। Hallelujah. जीसस, Take it out. निकाल दे प्रभु, Wash me thoroughly from mine iniquity. मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म, Cleanse me from my sin. मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध। I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता Against है। thee then only have I sinned and done this evil in thy sight. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, That thou might be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। 7th verse says, 7वीं आयत में, Purge me दाऊद, with hyssop and I shall be clean. जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, Wash me, मुझे धो I shall be whiter than snow. और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। Hallelujah. हालेलुया। He knew one thing. उसे एक बात मालूम थी, If anybody has the power to remove this sin, it is God. यदि मेरे जीवन के अंदर के पाप को साफ करने की ताकत यदि किसी के पास है तो वो परमेश्वर स्वयं है। Amen. हालेलुया। He even said like this. उसने इस प्रकार से भी कहा, What you? He says in 15th verse, 15 आयत में दाऊद कह रहा है, O Lord, open thou my lips that I may show forth thy praise. जीसस, For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। Sacrifices of God are a broken spirit, broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। Amen. आमीन। Nathan had hardly gone halfway. नातान नबी ये बात बोलकर महल से निकलकर जा ही रहा था, रास्ते में था। God told him, turn back. परमेश्वर ने उससे कहा, वापस मुड़, Tell him, जा और दाऊद से बोल, forgiven. तेरे पाप क्षमा हो गए। Hallelujah. Amen. आमीन। Not only that, न केवल इतना, I read the Bible. मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, God never mentions about his sin again. परमेश्वर पूरी बाइबल में कभी भी दाऊद के पाप के बारे में कभी फिर जिक्र नहीं किया। We preach it so often. हम कितने बार प्रचार करते हुए बोल देते हैं, God never remembers. लेकिन परमेश्वर ने कभी जिक्र भी नहीं किया। He did tell him that from where I brought you. उसने दाऊद को ये जरूर स्मरण दिलाया कि तू स्मरण कर कि मैंने तुझे कहाँ से लाया, From a shepherd to a king. और ये कहा तुझे एक चरवाहा था, वहां से मैं तुझे राजा के गद्दी तक लाया। But he never said. लेकिन फिर भी ये नहीं बोला, He never went back again and again telling him what he had done. उसको मुड़कर बार बार या कभी भी एक बार भी उसके पापों के विषय में उसे स्मरण The नहीं। scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, I've thrown your sins behind my back. परमेश्वर कह रहा है, सुन मैंने तेरे पापों को उठाकर अपने पीछे फेंक दिया है, Never remember them anymore. ताकि फिर उसे कभी भी स्मरण ना करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He washed me. उसने मुझको धोया है। Amen. आमीन। Revelations lastly. प्रकाशित वाक्य की किताब, First chapter. उसका आखिरी पहला अध्याय, 5th verse. 5वीं आयत। And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Hallelujah. हालेलुया। The last book of the Bible.
बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में In English it says, इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलता है, He has washed us from our sins उसने हमें हमारे अपराधों से शुद्ध किया है with His own blood. अपने स्वयं के लहू के द्वारा। Who washed you? किसने आपके पापों से आपको धोया है? No pastor, no evangelist, no bishop. कोई प्रचारक, कोई बिशप, कोई चरवाहा नहीं। He washed me. उस यीशु ने, उस परमेश्वर ने मुझे धोया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And when God does a job, He does it perfect. और जब परमेश्वर कोई भी काम करता है, वो काम उसका बिल्कुल सिद्ध काम होता है। Amen. आमेन। He washed me. उसने मुझे शुद्ध किया है। Amen. आमेन। And if God should wash us, और यदि परमेश्वर ने किसी को साफ किया है, no spot, no wrinkle will remain. उसकी सफाई के बाद उसमें ना एक दाग मिलेगा, ना एक झुर्री मिलेगी। Amen. आमेन। That's good news. ये शुभ संदेश है। Tell it to everyone. जाकर सभी लोगों को बताएं। Everybody ought to know सबको ये जानना जरूरी है who Jesus is. कि यीशु कौन है। He is the lily of the valley, वो तो वादी का सोसन का फूल है, bright and morning star. भोर का चमकने वाला। He is the fairest of 10,000. 10,000 में वो सर्वश्रेष्ठ है। Everybody ought to know. इसलिए सबको ये जानना जरूरी है। And how will they know? और वे लोग कैसे जान पाएंगे? When you tell them, जब आप जाएंगे और उनसे बताएंगे Jesus the mighty to save. कि सुनो, यीशु बचाने में बड़ा सामर्थी है। Our prayer is, हमारी प्रार्थना ये है, let the light of God shine in darkness. परमेश्वर की वो बड़ी ज्योति अंधकार में बैठे लोगों के ऊपर चमके। Amen. Amen. For these people who are going seeking for salvation, तमाम वे लोग जो यीशु को छोड़ किसी भी अन्यत्र स्थानों में जाकर उद्धार ढूंढ रहे हैं, may the light of God shine upon them. परमेश्वर की वो ज्योति उनके ऊपर चमकने पाए, May they be saved. वे लोग भी उद्धार पा जाएं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Shall we pray for this country one more time? आइए क्यों ना इस समय हम अपने देश के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। Lift up your hands and pray. हम सभी अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। Kura bali asiti ni kai mama wasili baba bashuka baba. Kure asande na la bahu le re kasi baba baba. If my people who are called by my name shall humble themselves, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाए जाते हैं अपने आप को दीन करें, shall seek my face and pray, मेरी बाट जो है और मुझसे प्रार्थना करें turn from their evil ways, और अपने बुरे मार्गों से मुड़ जाएं, I will hear from heaven. तब मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुन लूंगा I will heal the land. और उनके देश को फिर से चंगा कर दूंगा। People need the Lord. लोगों को प्रभु की जरूरत है। Let healing come. चंगाई लोगों को मिलने पाए। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, we lift up this land of India. हम इस समय उठाते हैं अपने इस भारत देश को And call on you to have mercy. और ये मांगते कि तू तरस खा, दया कर। Let salvation come to people लोगों को उद्धार मिलने पाए, out of darkness into the glorious light of God. अंधकार से परमेश्वर की बड़ी ज्योति में आने पाए। Give us grace that we might tell हमें अनुग्रह दे कि हम लोगों से कह सकें about the great salvation you purchased for us on the cross of Calvary. उस बड़े उद्धार के विषय में जिससे तूने कलवरी के क्रूस में हमारे लिए खरीदा है। Bless them all. इन सारे देशवासियों को तू आशीष देना, In Jesus' name. मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Sing that chorus, everybody ought to know. उस कोरस को गाएंगे।